Everyone, welcome to practice session number 14 of your UPSC CSAT 2025 preparation. इससे पहले as you can clearly see, we have covered 13 sessions of mixed set. ये सारे most expected questions से filled हैं for your upcoming examination. In this session, we would be covering questions from number series, number system, that is data sufficiency वाले question, then question on percentage, question on clocks. तो ये सारे इम्पॉर्टेंट सेट होने वाले हैं. ऑल्सो जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया रिगार्डिंग द रोड मैप, इसके आगे वी वुड बी कवरिंग सेशंस ऑन डेटा सफिशिएंसी, वन शॉर्ट वीडियो, our team is working on it, and then number system, one short video. तो ये ज़रा लेंदी होने वाले हैं, बट इट विल कवर ईच एंड एवरी इम्पॉर्टेंट PYQ एज वेल एज फ्यू एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस. तो ये दो सेशन या अपकमिंग जितने भी सेशंस हैं वो आपको मिस नहीं करने हैं. विल ट्राई टू प्रोवाइड यू विद दीज लेक्चर्स एज अर्ली एज पॉसिबल. प्रिसाइसली बाय 15 विल ट्राई टू take care of these lectures. Chalo. Till then, keep revising everything. Starting with our first question from practice set number 14. Varun's mother kept a box of chocolate in the refrigerator. Varun put up a daily plan of how many chocolates he would consume in the week. He represented that as diminishing stock, मतलब decreasing stock as 60, 48, 38, 28, 24, 20 and 18. इस तरीके से ये इनको कंज्यूम करने वाला है. His mother said that his plan would be approved provided he corrected one of the figures to make it a proper series. मतलब अभी जो इसने ऑर्डर बताया है इनमें से किसी एक फिगर को चेंज करना होगा सो दैट टू मेक इट अ प्रॉपर सीरीज. एट प्रेजेंट ये एक प्रॉपर सीरीज में नहीं है. विच वन डिड वरुण करेक्ट, इनमें से किसको वरुण ने करेक्ट करा है. ओके पहले लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि सीरीज क्या हो सकता है. अगर मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता है देन आई यूजुअली स्टार्ट बाय टेकिंग द कॉमन डिफरेंस और डिफरेंसेस. 60 एंड 48 का डिफरेंस 12, तो -12 हो रहा है. 48 एंड 38 -10, 38 एंड 28 -10, 28 एंड 24 -4, 24 -4 एंड देन -2. अगर आप देखो तो यहाँ पे ये डिक्रीज़ किया 12 से 10, बट ये यहाँ पे सेम है. तो शायद दिस इज़ अ रॉन्ग नंबर और दिस इज़ अ रॉन्ग नंबर बिकॉज यहाँ पे भी सेम हो रहा है. तो लेट्स ट्राई टू फोकस ऑन दिस फर्स्ट. मैं क्या चेंजेस कर सकता हूँ. मुझे दिख रहा है ये 2 से डिक्रीज़ किया पहला वाला पार्ट. तो अगर दूसरा वाला भी 2 से डिक्रीज़ करता तो यहाँ पे 8 होना चाहिए. तो 38 minus 8 should be not 28, it should be 30. एंड अगर ये 8 से डिक्रीज कर रहा है 8 minus 2 should be -6. 30 minus 6 is actually 24. अब ये यहाँ से बिल्कुल सही बैठ रहा है. द करेक्ट डेटा, इनकरेक्ट डेटा हियर इज 28. विच वन डिड ही करेक्ट? ही करेक्टेड 28 एंड रिप्लेस इट विथ 30. पूछा क्या? विच वन डिड वरुण करेक्ट? कौन सा ऐसा नंबर था जिसको उसने करेक्ट करा? सो ही करेक्टेड 28. ऑप्शन सी इज आर करेक्ट फिट. अगर यहाँ पे ये पूछता विच वन डिड ही करेक्ट एंड रिप्लेस्ड it with which value, तो he replaced 28 with 30 to make it a proper sequence of decreasing by 2 every time and starting from 12. 12 से डिक्रीज हुआ, फिर 10 से, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 2. अब आप देख पा रहे हो दिस इज अ प्रॉपर सीरीज. इट्स अ क्वेश्चन फ्रॉम नंबर सीरीज. ऑल राइट, मूविंग अहेड. Two numbers A and B are respectively 21% and 43% more than a third number C. By what percentage is the number B more than the number A? Okay, ये proper PYQ based है. This is PYQ based question. Last year we had a question and few years back also we had a similar question. तरीका देखते हैं कि क्या है. और ये question percentage topic से. A is 21% more than C and B is 43% more than C.
तो अगर मैं C को कुछ अज्यूम कर लूँ, एंड इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल इफ़ यू आर अज्यूमिंग an unknown quantity, and when we are dealing with percentage, we always tend to take the unknown quantity as a multiple of 100. So our unknown quantity could be x. In that case also I'll be getting the same result. But advisable क्या है, एक method क्या है कि let the unknown quantity be a multiple of 100, because we know whenever we are dealing with any percentage, let's say it is 20%. So 20% is 20 upon 100. We have 100 at the denominator. So this is the rule. See, it eases our calculation. We'll see how. See, if we have taken the unknown quantity or number third as 100n, what is A? A is 21% more than the third number. What is 21% of 100n? Let's do this calculation quickly. 21 by 100 into 100n. ये क्या बन रहा है? आप डायरेक्टली बोलोगे इट इज 21n. यू डोंट एक्चुअली डू द कैलकुलेशन हियर. ये टाइम सेव कर रहा है. So it is 21% more, which means it is 100n plus 21% more, which is 21n. So this finally becomes 121n. Okay, B क्या है? B is 43% मोर. 43% का मतलब क्या होगा? 43n. मोर का मतलब है 100n, तो होगा ही प्लस 43n एक्स्ट्रा, 43% एक्स्ट्रा. सो दिस इज एक्चुअली 143n. नाउ वी हैव एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ A, B एंड C. अब परसेंटेज फॉर्मुलेशन का एक कोर कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं. परसेंटेज, रिक्वायर्ड परसेंटेज. परसेंटेज के लिए मुझे हमेशा एक फ्रैक्शन चाहिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. उसे मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है. नाउ वी नीड अ फ्रैक्शन एंड दिस फ्रैक्शन नीड्स टू बी मल्टीप्लाइड बाय 100. बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर बी मोर देन द नंबर ए? These keyword then help us to determine the denominator. Then के बाद जो भी है, whatever is written after then becomes the denominator. So then के बाद यहाँ पे है A. So A becomes our denominator in 200. And by what percentage the number B is more than A? So B more A becomes our numerator. How much is B more than A in terms of percentage? So this value is B more A. Take the difference. B is 22 n more. So 22 n more. What is the value of A? 121 n into 100. चलो अब ज़रा सिंप्लीफाई करो. n और n कैंसल्ड आउट. 11 का मल्टीपल है 2 टाइम्स, 11 का मल्टीपल है 11 टाइम्स. तो ये बन गया 2 by 11 into 100. अब अगर आपने परसेंटेज का क्लास अटेंड कर रखा है, यू नो द बेसिक्स ऑफ रूल ऑफ 9 versus 11. If the denominator is 11, it follows the table of 9. 9 into 2 is 18.18%. बहुत ही ईजी कैलकुलेशन है ये. एक नॉर्मल एस्पिरेंट के लिए सबसे ईजीएस्ट कैलकुलेशन है जो मैंने अभी करा है. तो 18.18% इज द करेक्ट फिट. लेट्स सपोज दिस वाज 2 by 9. तो तुम्हें पता है रूल ऑफ 9 2 11 होना, 9 versus 11. If it is 9, then it should be the table of 11. So it should have been 22.22%. अभी 11 है, therefore the correct answer is 18.18. I hope this helps. Moving ahead, ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे. Now we are dealing with question of logical reasoning in which we are dealing with questions of clock. Very important, please pay attention. I'll try to explain this from the basics. देखो, clock is basically a 360 degree. एक सर्कल है तो 360 डिग्री टोटल है. हाउ मेनी मेजर डिविजन्स आर हियर? देर आर मेजर 12 डिविजन्स. 1 2 3 4, ये सारे मेजर डिविजन्स. नाउ 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 12 विल गिव मी 30 डिग्री. अब ये 30 डिग्री क्या इंडिकेट कर रहा है? एक कोई भी पार्ट अगर आप पकड़ रहे हो, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 30 डिग्री, दिस इज अगेन 30 डिग्री.
You can see this is 90 degree, 30 plus 30 plus 30. Clear? All of this, 1 hour movement, 1 hour. This is actually 1 hour. Let's suppose the time is 3. What will happen in 1 hour? This hour hand will move from 3 to 4. So this hour hand will move from 3 to 4, which is a movement of 30 degree. So in 1 hour or 60 minutes, the hour hand moves 30 degree. I hope this is clear. In every 1 hour or 60 minutes, hour hand moves 30 degrees. Now, how many smaller divisions are here? 1, 2, 3, 4 and the fifth. 1, 2, 3, 4 and the fifth. 1, 2, 3, 4, fifth. 1, 2, 3, 4. इस तरीके से it will be continued up to 12. And ये जो smaller divisions हैं, including the red ones, these are in total 60. So 360 divided by 60, we get 6 degrees. ये 6 डिग्री का जो डिफरेंस है, ये 1 मिनट की वैल्यू है. सो इन 1 मिनट द मिनट हैंड मूव्स 6 डिग्री. अब चेक कर सकते हो. लेट्स सपोज इट इज 3 PM. तो दिस इज द मिनट हैंड एग्जैक्टली एट 12. दिस इज द आवर हैंड एग्जैक्टली एट 3. 1 मिनट का मतलब है 301. तो ये जो मिनट हैंड है 12 पे, ये 1 मिनट में 12 से यहाँ पे आ जाएगा. एंड इस गैप को बोला जाता है दिस इज 6 डिग्री. दिस इज अगेन 6 डिग्री. दिस इज 6 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री. हाउ मच इज दिस? 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 6, 30 डिग्री. और ये अल्टीमेटली 30 डिग्रीज ही है. यू गेट द आइडिया. नाउ लेट्स टॉक आउट आवर क्वेश्चन. ये बेसिक्स हो गया. दिस इज important. This part is very important to understand. Now let's look at our question. Between 6 and 7, the minute hand of a clock will be ahead of the hour hand by 3 minutes. 1 minute is 6 degrees, so 3 minutes would be 3 into 6, which is 18 degrees. Minute hand hour hand से ahead होना चाहिए. अच्छा, ये जो टाइम है ये 6 से 7 के बीच का है. 6 से 7 के बीच का टाइम का मतलब क्या है? दैट द आवर हैंड शुड बी एनीवेयर बिटवीन 6 to 7. क्या 6 से 7 के बीच में आवर हैंड यहाँ पे हो सकता है या फिर यहाँ पे और हियर? नो, द आवर हैंड विल ऑलवेज बी समवेयर अराउंड हियर. एनीवेयर यहाँ पे कहीं पे भी हो सकता है, बट इसी रेंज में होगा. बट द मिनट हैंड शुड बी अहेड ऑफ दिस. अहेड का मतलब क्या है? इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. अहेड मीन्स ऑलवेज दिस साइड. ये डायरेक्शन है देखने का. तो अगर मिनट हैंड को इसके आगे रहना है, अहेड रहना है, देन द मिनट हैंड शुड बी एनीवेयर हियर और हियर और हियर और हियर और हियर और हियर और हियर, एनीवेयर अप टू हियर. द मिनट हैंड कैन नॉट बी हियर. The minute hand cannot be here. The minute hand cannot be here. The minute hand cannot be here. Because in that case, the minute hand is not actually ahead of this. उस समय hour hand इसके ahead दिख रहा है. अगर मान लो it is 6:15, जैसे यहाँ पे time given है. Where is our minute hand? Our minute hand is at 3. Our hour hand is somewhere around here. तो minute hand is lagging behind the hour hand. तो can 6:15 be a possible answer or 6:18 be a possible answer? No, ये तो नहीं हो सकता ना. You getting the idea? Because the minute hand should be ahead of the hour hand and by 18 degrees. Okay, can it be 6:48? Let's plot 6:48. 6:48 का मतलब है the minute hand should be, this is 45, this is 50. 1, 2, 3, 4. 46, 47, 48. The minute hand is exactly here. और आवर हैंड कहाँ पे होगी? आवर हैंड समवेयर अराउंड यहाँ पे होगी. अब आप क्लियरली देख सकते हो दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री एंड दिस इज 1, 2, 3, 18 डिग्रीज. तो ये बहुत आगे हो गया.
It is not 18 degrees ahead. It is more than 18 degrees ahead. It is somewhere close to 80 degrees ahead, right? So this is also ruled out. The only possible answer here is 6:36. तो ये आपके लिए करेक्ट फिट है. बट अगर आपको इसको चेक करना है कि इज 6:36 द एग्जैक्ट आंसर वेर इन द मिनट हैंड इज एग्जैक्टली अहेड बाई 3 minutes और 18 degrees, लेट्स चेक. नाउ 36 means this is 30, this is 40, this is 45, this is 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes, 45 minutes. 36 means somewhere around here. So the minute hand is exactly here. यहाँ पे मिनट हैंड इस वाले पार्ट पे, राइट. नाउ ये मेजर डिविजन है मेरे, ये वाले. आवर हैंड बैठा तो नहीं रहेगा ना. जस्ट थिंक अबाउट दिस. At 6 o'clock, the hour hand is here, the minute hand is here. As soon as the minute hand starts moving, the hour hand will also start moving, but at its own pace. ये अपनी स्पीड पे मूव करना स्टार्ट करेगा. कितना मूव करेगा? तो इन 1 hour the hour hand moves 30 degrees. We know. In 60 total minutes or 1 hour, the hour hand moves by 30 degree. तो कैन आई से इन 1 minute, अगर एक ही मिनट हुआ है तो आवर हैंड मूव करेगा 30/60 विच इज़ हाफ ऑफ अ डिग्री. और अभी मेरे पास जो टाइम गिवन है वो है 36. सो इन 36 minutes द आवर हैंड विल मूव बाय 30/60 into 36 विच इज़ 18 डिग्री. अब ज़रा समझते हैं इसका मतलब क्या है. आवर हैंड यहाँ पे स्टार्ट हो रहा था, ये 18 डिग्री से मूव कर गया, मतलब 1 2 3. आवर हैंड अभी यहाँ पे है. द आवर हैंड इज एग्जैक्टली हियर. दिस इज आवर आवर हैंड एंड दिस इज आवर मिनट हैंड. आप ज़रा कैलकुलेट करो इनके बीच में कितने का गैप आ रहा है. दिस इज 6 डिग्री, दिस इज 6 डिग्री, दिस इज 6 डिग्री, 18 डिग्रीज. क्या मिनट हैंड अहेड है? यस. द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 minutes. यस. एंड व्हाट इज दैट टाइम? दैट टाइम इज 6:36. आई होप दिस हेल्प्स. बहुत ही इंपॉर्टेंट था बट इसको मैंने बहुत ही बेसिक लेवल पे डिस्कस करा है. गो बैक टू दिस, प्लीज अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ दिस, एंड दिस इज एक्चुअली यूनिटरी मेथड. दिस विल ऑलवेज हेल्प यू. दिस पार्ट ऑफ द कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यूनिटरी मेथड के बेसिस पे सॉल्व करें. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ few एग्जाम्पल्स. यू विल गेट एन आइडिया व्हाट आई एम सेइंग. बट दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट. ये हर जगह पे आपको करना है इन टर्म्स ऑफ फॉल्टी क्लॉक एज वेल. चलो आगे बढ़ते हैं. When Yuvraj left to meet his friend, again a question on clock, the clock showed a time between 4 and 5 o'clock. तो let's suppose अभी युवराज लेफ्ट करा, the clock showed a time between 4 and 5. देखो between 4 and 5 the time could be anything, but मुझे जो श्योरिटी है वो इस चीज़ की है कि जो आवर हैंड होने वाला है वो 4 and 5 के रेंज में रहेगा. ये यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ कहीं पे भी. बट द आवर हैंड कैन नॉट बी एट 3 or 2 or 1 or anywhere else. This I know. When he returned home, the clock displayed a time between 7 and 8. Between 7 and 8 का मतलब है the hour hand necessarily will be somewhere in this range. It could be anywhere, but इसी रेंज में रहेगा. मिनट हैंड कहीं पे भी हो सकता है. आई डोंट नो व्हाट अबाउट मिनट हैंड. इट कुड बी एनीवेयर, बट आवर हैंड मस्ट बी नेसेसरली हियर. और यहाँ पे वो है. एक और इम्पॉर्टेंट एंड स्ट्राइकिंग फीचर क्या है इस पूरे क्वेश्चन का? दैट इज द पोजिशंस ऑफ द आवर हैंड एंड द मिनट्स हैंड हैड इंटरचेंज. इंटरचेंज किस पोजीशन से?
from the position that he started. At what time did युवराज leave the house? तो जब युवराज घर को छोड़ के जा रहा था to meet his friend, the clock was showing a time between 4 and 5. जब वो वापस आता है तो whatever this time was, let's suppose this time was 4:45. Let's suppose this time was 4:45. तो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड हैड इंटरचेंज. तो आवर हैंड यहाँ पे था, तो अब आवर हैंड यहाँ पे आ जाएगा और मिनट हैंड कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे. ये हो रहा है. बट एक और चीज़ है कि द टाइम इज 7 and 8, तो दिस टाइम इज नॉट पॉसिबल. द टाइम इज 7 and 8 का मतलब ये है कि जैसे ये इंटरचेंज होंगे तो ये 7 और 8 के बीच में आवर हैंड उठ के आ जाएगा. ये तभी पॉसिबल है when I know that when he left the house the minute hand was somewhere between 7 and 8. ये तो समझ में आ रहा है ना, positions of the hour hand and minute hand had interchange. This is only possible when the minute hand was somewhere in this range, और जैसे ही इंटरचेंज होंगे तो ये कुछ ऐसे दिखेंगे. दिस इज वन पॉसिबिलिटी. अब ऐसे क्वेश्चन को आप हमेशा ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हो. मिनट हैंड, दे हैव इंटरचेंज देयर पोजिशंस. नाउ एट व्हाट टाइम डिड ही लीव द हाउस? सो ही लेफ्ट द हाउस एट दिस टाइम समवेयर अराउंड, this is 35 minutes, this is 40 minutes. Anything between 4:35 to 4:40. The time is 4:35 to 4:40. इसी के बीच में any time he left the house. Let's look at options. 4:36, yes, it's a possible option. 4:30, not possible. है ही नहीं पॉसिबल. जो मिनट हैंड है वो 7 to 8 के बीच में रहेगा. सो 30 पे, 32 पे नॉट पॉसिबल, 42 पे नॉट पॉसिबल. इन दैट केस ये वाला जो लाइन है ये फॉलो नहीं हो पाएगा. ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है. व्हेन ही लेफ्ट द हाउस एंड केम बैक, द टाइम डिस्प्लेड वॉज बिटवीन 7 and 8, एंड वी नो द मिनट हैंड एंड द आवर हैंड हैड इंटरचेंज देयर पोजिशंस. दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन we are keeping the minute hand in this range. तो ऑप्शन ए इज अगेन आर करेक्ट फिट. बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये. एक बार इसको आप समझने की कोशिश करो. चांसेस है ये आपसे पूछा जा सकता है. ऑलराइट, गोइंग टू द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑन डेटा सफिशिएंसी. A and B are positive integers. What are positive integers in the number line? Positive integer starts from 1 and goes up to positive infinity. आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑल्सो नोन एज नेचुरल नंबर्स. ठीक है. नाउ, इज ए ग्रेटर देन बी? इट्स अ यस और नो क्वेश्चन. अगर आप विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट्स बोल पा रहे हो यस, देन ऑल्सो इट इज सॉल्वेबल. इफ विथ श्योरिटी यू आर एबल टू से नो, then also this is solvable. We just need to get to surety of yes or no. Surety. Now, evaluating statement number 1. The product of A and B, A into B, is greater than the square of B. Square of B का मतलब B into B. आप बताओ, if we have this data, इससे मुझे क्या clearly ये नहीं दिख रहा है that A is greater than B. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट किसी के स्क्वायर से बड़ा और वो एक नंबर यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट क्लियरली मीन्स कि ए बड़ा है बी से, तभी ऐसा हो पा रहा है. सो ए इज ग्रेटर देन बी. दिस स्टेटमेंट इज हेल्पफुल इन गिविंग अस दिस स्टेटमेंट दैट ए इज डेफिनेटली ग्रेटर देन बी. सो इज ए ग्रेटर देन बी? यस, वी आर एबल टू से दिस विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट नंबर 1. सो विल से दिस स्टेटमेंट इज सफिशिएंट. नाउ लेट्स इवैल्यूएट स्टेटमेंट नंबर 2. द सम ऑफ A and B is equal to 13. So A plus B must be equal to 13. And we know A and B are natural numbers. Let's start with the very least natural number 1. मैं B की वैल्यू क्या रखूँ कि ये 13 के बराबर हो जाए? So 12.
और मैं क्या पॉसिबिलिटीज़ रख सकता हूँ, यहाँ पे 2 रखा है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 3 रखा है, यहाँ पे 10, यहाँ पे 4 रखा है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5, यहाँ पे 8, 6, 7, 7, 6 और 8, 5, 9, 4, 10, 3, 11, 2, 12, 1। ना कुछ केसेस में आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक दैट ए इज़ लेस देन बी, और जब मैं इन वाले वैल्यूज़ को चेक कर रहा हूँ यहाँ पे मुझे दिख रहा है ए इज़ ग्रेटर देन बी। तो इट्स अ कांट से सिनारियो। आप यस भी नहीं बोल पा रहे हो, आप नो भी नहीं बोल पा रहे हो। क्या आप कॉन्फिडेंटली बोल पा रहे हो इज ए ग्रेटर देन बी? आई एम नॉट श्योर। सीम्स लाइक ए इज ग्रेटर देन बी, सीम्स लाइक ए इज लेस देन बी। सो यू आर नॉट एबल टू से एनी ऑफ इट। यस भी नहीं बोल पा रहे हो, नो भी नहीं बोल पा रहे हो। दिस स्टेटमेंट सिंगल हैंडेडली इज नॉट सफिशिएंट. Now, you already got the answer with the help of statement number 1, but we are not able to get to the correct answer with the help of statement number 2. The question can be answered using one of the statements alone, but cannot be answered using the other statement alone. Option A is our correct fit. So these were 5 important questions from your practice set number 14. Tomorrow we would be uploading practice set number 15, and with that we'll try to upload data sufficiency one shot, it is going to be a longer video but worth, and then number system practice session and one shot videos. And before the examination we'll again come up with few more mixed practice sessions so that you are always in the loop of solving few questions. चलो, आई होप दिस हेल्प्स. मेक इट अ पॉइंट कि आप जितने क्वेश्चन अभी मैं करवा रहा हूँ आपको, यू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ईच एंड एवरी क्वेश्चन. ऑलराइट, दीज विल डेफिनेटली हेल्प यू इन द एक्चुअल पेपर. टेक केयर एवरीवन. हैप्पी